See the topic called don't be in past. पुराना जीवन में हम लोग रहना नहीं है. Okay, let's see. Like if you see in Isaiah, I don't put the Bible verses here, but like God was reminding me when I was standing there. Isaiah में जब हम लोग देखते हैं तो there was a one prophecy. Don't dwell in the past. See, I'm doing the new thing. Do you perceive it? So today there is a prophecy that Isaiah has written, and that prophecy fulfilled when Jesus Christ came. So today if we see we are already created by Jesus as a new creation in Christ. हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें नया सृष्टि बनाया. हमें और आज ये जो नया साल में जब हम लोग प्रवेश होंगे, हम लोग ये याद होना चाहिए कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग उस पुराना जीवन में ना रहें. God doesn't want us to be dwell in the past, but God wants us to understand that He is doing the new thing. Are you all getting the point? Do you understand today that today is the new year, the first day of the year? आप समझ सक रहे कि नहीं कि परमेश्वर नया चीजेगा? Can you just perceive that God is doing the new thing? आप समझ पा रहे हैं? हम लोग ऐसे ही इस नया साल में प्रवेश नहीं हुए. Okay? Like who knows? Even yesterday some people may die. हम लोग मालूम नहीं, लेकिन अगर हम लोग न्यूज को देखेंगे, क्या पता कल ही कोई मर गया होगा. कल मैं वहां से लास्ट गेट में जब क्रॉस किया, वहां पे गाड़ी पूरा भीड़ हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ था. When I was returning home, I saw some people are just roaming around with drum. तालू पी के पूरा इधर हला गुला कर लड़ाई कर रहे. मैं देखा तो हम सोचा कि जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या पता वो मरा ही नहीं मरा. Right? Because that accident was not just normal accident. I think that was car accident. क्योंकि बाइक वगैरह होने से थोड़ा साइड कर देता है और चला जाता है, लेकिन उसमें पूरा कार भीड़ हो गया रात को. ना तो ट्रैफिक है, ना तो बहुत सारा व्हीकल, नहीं कुछ नहीं. So I believe something serious took place. तो आज हम लोग जब देखते हैं, हम लोग नया साल में प्रवेश होते हैं, ये हम लोग को पहचानना है, होश में आना है कि परमेश्वर नया काम कर रहे हैं आपका जीवन में. We need to understand. So now I want to go directly to the Word of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. We all know, right? हम सब लोग जानते हैं कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है, वो नया सृष्टि है. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. The old has gone and the new is here. तो आज हमारा बीच में कितने लोग हैं यीशु मसीह का बिना, और कितने लोग हैं यीशु मसीह में? हम लोग यीशु मसीह में है, इसलिए हम लोग इस कलीसिया में आए. We are in the Christ, so we have come to the presence of God, right? अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप नया सृष्टि हैं. तो इसीलिए वो आइजिया प्रोफेसी कहता है कि don't dwell in the past. See, I'm doing the new thing. Do you perceive it? I will make the way in the desert and I will make the stream in the wilderness, right? I will make the stream in the desert and I will make the way in the wilderness. So that is the promise of God. For the human, it's a kind of wilderness and the desert where there is no hope. मनुष्य का जीवन में आशा नहीं थे. जंगल का तरह, रेगिस्तान का तरह. It's like a desert. It's like a wilderness. There is no hope that the stream water will just come out in the midst of the desert. Not possible. जो पॉसिबिलिटी नहीं, जो असंभव है, वहां पे यीशु से जन्म हुआ है. As a stream water, as a living water, right? मनुष्य के लिए यीशु मसीह बिना जहां कहे हैं जो उद्धार का रास्ता है. No. For the human God, there is no any salvation road without Jesus. क्योंकि जो बाइबल कहता है ये झूठ नहीं है. It is not a lie. Bible says only one Savior is born. खाली एक ही उद्धारकर्ता जन्म हुआ है. आज मैंने बहुत सारे धर्म किताब पढ़ चुके हैं. कहीं पर भी धर्म किताब में नहीं लिखा कि उद्धारकर्ता है यहाँ. इस बाइबल का अलावा कोई उद्धारकर्ता दुनिया में जन्म नहीं हुआ है. जैसे कि इतिहास में पढ़ो, यू जस्ट स्टडी द हिस्ट्री
religious book, but you will never find the God who can forgive except Jesus. इसलिए स्वर्गदूत जब आए, the angel came and said, only one savior is born. It doesn't say two savior is born. So when you seek or when you search around the world, you wouldn't find anywhere savior except Jesus Christ. That's what Jesus says, I'm the way and the truth and the life. No one can go to heaven except through me. Amen. Amen. So why Jesus said that? Because He is the only living water in the desert. समझ पा रहे हैं? He is only the way in the wilderness. Wilderness आप कभी गया? कोई जंगलों में आप कभी गया? अगर आप कोई गया है तो आपका एक्सपीरियंस होगा. मैं जा चुका हूँ बड़ा बड़ा जंगल में. ऐसा इतना बड़ा बड़ा पेड़ होता है, 5-6 आदमी ऐसे राउंड भी कवर नहीं कर सकता. बड़ा बड़ा जंगल में जब विंड मारते हैं तो जो प्राण है ना वो करने करके आवाज करेंगे, पूरा एकदम इविल डेड का तरह है. आवाज अलग अलग आवाज की हम क्या. लेकिन जब जाते हैं ना आप जंगल का बुश में घुस जाएगा तो रास्ता नहीं मिलेगा. डिफिकल्ट. When you go this way, you have to mark and go. Otherwise, we cannot find. We cannot come back. You cannot find the way. आपको रास्ता नहीं मिलेगा. आपको आप जब जाएंगे ना वापस आएंगे तो आपको एक ही तरह दिखा देगा रास्ता कहाँ पे है. आप खो ही गए. It's not easy to just pass without the road. But Jesus says, I will make the way in the desert, or in the wilderness. Amen. So today, God has made us a new creation in Christ. हम लोग अभी नया सृष्टि हैं, नया सृष्टि हैं. Let us say, I am a new creation in Christ. I am a new creation in Christ. My old has come, My old has gone, and the new has come. and the new has come. Amen. Amen. So today, I will teach you how to dwell in the new. कैसे नया सृष्टि में रहना है, कैसे नया सृष्टि के द्वारा जीना है, मैं सिखाऊंगा. Are you all ready? We need to learn how to dwell in the new creations, okay? तो ये मेरा क्वेश्चन है कि do you dwell in the past? आप पुराना जीवन, पुराना स्वभाव पे है. बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे कि मनुष्य कंफर्ट जोन बहुत प्रेम करते हैं. We human, we love the comfort zone. That means who loves the comfort zone, they don't want to change. आप कंफर्ट जोन से प्रेम कभी नहीं करना, राइट? और मैं सोता हूँ, सो के पूरा मैं 10 बजे में आराम से उठता है. फिर उठ के देखता मेरा मम्मी ब्रेकफास्ट बनाएगी नहीं. फिर आराम से खा के फिर उसके बाद फ्रेश अप हो जाता है. हम फ्रेश अप होकर हम ऑफिस जाके आता है. फिर ऑफिस जाके आएगा, फिर इस बार खाएगा, फिर इसके बाद 2-3 बजे 2 बजे 1 बजे सोएगा आराम से बिंदास. कंफर्ट जोन अच्छा लगता है ना, है कि नहीं? बढ़िया एकदम, बढ़िया. लेकिन जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे, यू कैन नॉट चेंज. यू शुड हैव द डिसिप्लिनरी लाइफ. आपका जीवन में एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं आपका शरीर चाहे ना चाहे आपको पनिश करना पड़े. Then only you can become something. कंफर्ट जोन में रहने वाला कभी भी वो आशीषित व्यक्ति नहीं बन सकता. Always remember. But who fight against the desire of your flesh, आपका शरीर का इच्छा के साथ तुम लड़ोगे, सजा दोगे आपका शरीर को, वही आशीषित बन सकता. सजा देना मतलब ये नहीं कि आपका शरीर को मारो, खून बहाओ नहीं, लेकिन आपका जो शरीर चाहते हैं वो मत करो, राइट? तो आज हम लोग नया जीवन जीने के लिए, नया सृष्टि का जीवन जीने के लिए हम लोग पुराना जीवन को त्यागना पड़ेगा. We need to deny our old character. हम लोग को हमारा पुराना जो कैरेक्टर स्वभाव है उसको त्यागना पड़ेगा. We need to deny. हम लोग जब देखते हैं, therefore we do not lose heart. Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inner man is being renewed day by day. आज हम लोग शरीर में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ, it is not talking about
outward man is perishing. Outward man is, who is the outward man? जो बाहर वाला जो व्यक्ति कौन है? बाहर वाला व्यक्ति शरीर है. अंदर वाला कौन है? Inner being is the spirit. समझ पा रहे हैं? Even the human being carries the three personalities as God carries. इस परमेश्वर भी एक ही परमेश्वर है, but God carries the three personalities. That is Son, the Holy Spirit, the Father. लेकिन वो लोग एक ही हैं, एक ही हैं. ऐसा मत सोचना कि यीशु मसीह बोलने से वो पिता से अलग हो गया, पवित्र आत्मा में से वो यीशु मसीह से अलग हो गया. नहीं, आपका अंदर में आत्मा है. वो आत्मा जैसे मेरे अंदर में आत्मा है तो वो आत्मा जिन है. ये शरीर है तो ये शरीर जिन का शरीर है, और मेरा अंदर में प्राण भी है, द सोल. So many people think, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्राण आत्मा एक ही है. नो, I already taught that one in the church, right? प्राण और आत्मा अलग अलग चीज है, ठीक है. प्राण आत्मा का संपत्ति है. The soul is the property of the spirit. आप लोग समझ पा रहे हैं? And the शरीर जो है mainly the spirit dwelling, but mainly controlled by the soul. सोल जो है वो आपका दिमाग में है. Emotions, the pain, feelings, everything controls and everything contained in the soul. ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? तो हम लोग का शरीर में तीन पर्सनालिटीज है कि नहीं? शरीर है, शरीर कुछ चाहते हैं, और शरीर और जो हमारा प्राण है वो दोनों दोस्त, बहुत अच्छा कह रहा है दोस्त, राइट. लेकिन हमारा जो आत्मा है वो अकेला हो जाता है. Because we see in the Bible, we can clearly understand. Bible इस थ्री चीजें के बारे में अच्छा से सिखाता है. It's very clear. There is no confusion. So we don't have time to discuss about this. But I want to just say that हम लोग के अंदर में पर्सनालिटीज तीन प्रकार का है. परमेश्वर के अंदर में पर्सनालिटी तीन प्रकार है. आत्मा है, बेटा है, पिता है. पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का आत्मा है. The Holy Spirit is the spirit of the truth, and the Bible says Jesus Christ is the truth. That means Holy Spirit, the spirit of Jesus. Amen. तो आज हम लोग को ये समझना है कि और वचन कहना है कि वहां पर एक ही आत्मा है. Only one Holy Spirit. That means God is only having one spirit. God the Father has no different spirit. He has only one Holy Spirit. Jesus doesn't have different spirit, but Jesus has the Holy Spirit. आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आज परमेश्वर का जो पर्सनालिटी इसको समझने आप लोग दिक्कत होता है. लेकिन वचन में जब देखते हैं पिता भी यीशु है और पवित्र आत्मा भी यीशु है और यीशु भी यीशु है. आप लोग समझ पा रहे हैं ना? इसलिए जब आइज़िया पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो वो क्या कुमारी बेटा को जन्म देगा. She will give birth to a son and his name to be called Jesus. His name to be called Good Counselor, Mighty God, Everlasting Father. यीशु मसीह का नाम क्या बुलाता है? Everlasting Father. That means Father is also Jesus. Holy Spirit is the Spirit of Jesus. आप समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग यहाँ पे देखना है कि हमारा जो बाहर वाला पर्सनालिटी क्या है. आउटवर्ड मैन इज योर बॉडी, इनर मैन इज योर स्पिरिट. ओके, अब लोग समझ पा रहे हैं? तो आज यहाँ पर ये नहीं बोलते हैं कि when your body is perishing, it is not talking about when you are getting sick. ये नहीं बोल रहे कि आप जब बीमार हो जाते हैं आपका बीमार का वजह नाश हो रहा है, ये नहीं बोल रहे आप. लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आपका शरीर जैसे उम्र बढ़ते वैसे पेरिशिंग होता है. मालूम है? जैसे आपका बर्थडे, हर साल बर्थडे आते हैं, आपका जीवन काटता है. आपको मालूम ही नहीं? मालूम है कि नहीं? हम लोग बर्थडे तो बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि हम लोग धन्यवाद देते हैं कि नया साल दे रहे हैं, इसलिए कि बीते हुए साल में परमेश्वर हमारा साथ था. But in other hand, if we think nicely, every day the birthday comes, your life shorten. आप समझ पा रहे हैं? That means perishing. Your body is perishing every year. But as the perishing means your body gets old. आपका शरीर पुराना हो रहा है, बुरा हो रहा है. You are getting, आपका शरीर बढ़ रहा है, उम्र में बढ़ रहा है.
लेकिन जैसे आपका शरीर बढ़ते हैं वैसे आपका जो आत्मा है, आत्मा का जो जीवन है, जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, योर स्पिरिट बीइंग गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर। आमीन। आपका आत्मा का दुनिया में क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए मैं तो अभी तो बुरी हो गया हूँ, अभी तो हम तो थोड़ा बुरा हो गया, मेरा उम्र हो गया, अभी क्या करेंगे। एक्चुअली ये वचन के अनुसार आपको ये होना चाहिए जैसे आप शरीर में बढ़ रहे हो वैसे आपका आत्मा में और सामर्थ और तंतुरुस्त होना चाहिए। आमीन। तो अभी यहाँ पे पौल कहता है कि therefore we do not lose heart, हम लोग निराशा नहीं होते हैं। हमारा शरीर नाश होने से भी हमारा जो आत्मा है वो हमेशा क्या हो रहा है? Renewed day by day. So I want to talk about renewing your spirit. Renewing. Because unless you don't renew your spirit, you cannot dwell in the new. आप जब तक आपका जो आत्मा को नया नहीं करेगा, आपका सोच को नया नहीं करेगा, आप कभी भी नया सृष्टि का जो परमिशन है, जो आपका जीवन में नया सृष्टि दिया है, उस पे आप नहीं रह सकता। You cannot dwell in the new creations. देखिए बहुत सारे लोग बपतिस्मा हुआ लेकिन वही पुराना जीवन में जिया। दुख की बात है। नया सृष्टि परमेश्वर ने उसका जीवन दिया, उसका सारे लहू बहा दिया, दर्द सहा, मारा भी गया और जी उठा। परमेश्वर ने क्या नहीं दिया? जो है वो दिया। वचन कहता है कि उसका पास एक ही लौता पुत्र था, वो दे दिया। मेरे पास क्या है? मेरा शरीर है। अगर ये शरीर मैं दूंगा तो मेरा पास क्या और है? कुछ नहीं। तो परमेश्वर के पास खाली एक ही पुत्र है, वो दिया सबसे उत्तम चीज। God has so many things. He is the creator of the universe. He has so many things, but nothing is greater value than the Jesus Christ. So the greatest gift that God gave हम लोगों को दिया ताकि उसका यीशु मसीह का नया सृष्टि, नया जीवन के द्वारा हमें भी नया जीवन मिले। आमीन। Because you cannot become a new creation by your own effort. आपका खुद का मेहनत, आपका खुद का भला काम से आप कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। आप कभी भी गलत विश्वास मत करना। ऐसा मत सोचो कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे सॉरी, ऐसे मत करो कि मैं जब अच्छा काम करूंगा तो मुझे उद्धार मिलेगा। ऐसा मत सोचो। मैं ये नहीं कहता कि जब आप बुराई करते हैं तो क्या आपको उद्धार पा रहे हैं, ये नहीं कहता। ओके? क्योंकि जब आप उद्धार पाते हैं, what is the symbolic or what is the sign, what is the significant or what is the proof that you are saved? आपको उद्धार मिला कैसे आपको पता चलेगा? जब आप नया जीवन जीना शुरू करें। Because there is a fruit of your salvation. अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अच्छा पेड़ है। Okay? So when you do good, you are not earning your salvation. जब आप अच्छे काम करते हैं, आपका उद्धार के लिए आप नहीं कर रहे। You are doing good because you are already saved. You are already good tree. समझ पा रहे हैं? We don't do good to earn the salvation, but we do good because you are saved. You become a child of God. You bear the fruit of the Spirit. आप समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आज परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, जो है उसका है वो दिया हमें, लेकिन उसके बदले में आपने क्या किया? उसके बदले में आपने क्या किया? परमेश्वर कभी भी कुछ नहीं चाहता। यीशु मसीह जब धरती पे उतरा, यीशु मसीह जब उसका मुंह से वचन निकल गया है, उसने क्या बोला? रिपेंट, रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। That is what God wants. परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता। आप परमेश्वर चाहते कि आप पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, नम्र हो और नया जीवन को लो। Receive the new creations, new life. Don't dwell in the past. And to overcome or to away from the past life, repentance is also the key. You must repent wholeheartedly. Repentance and receive the forgiveness of the sin.
परमेश्वर से पाप का क्षमा पाना है और नया जीवन बन जाओ, नया जीवन जीने लग जाओ। आमीन। जब तक आप रिपेंट नहीं करोगे दिल से, आप नया करने की कोशिश करेगा, कभी भी नहीं होने वाला। राइट? आज हमें नया जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग को कैसे करना है? हमारा जो आत्मा है वो नया हो चुके हैं, तो जो रिन्यूड डे बाय डे इज रिन्यूड डे बाय डे, तो हमारा जो आत्मा है वो नया हो चुके हैं। तो वो जो नया हो चुके हैं उसको और नया करते जाना है, क्योंकि salvation is not only one time. Salvation has the stage, growing stage. जैसे हम लोग शरीर में बढ़ता है तो वैसा हम लोग का उद्धार में भी बढ़ना है। That's why Paul says, with trembling, work out for your own salvation. With trembling. जैसे कि अभी मैं कहता हूँ कि we are the new creation in Christ. We have read that one, right? Okay, we will read afterwards. We are new creation in Christ. हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हम लोग नया है। उसका मतलब क्या है? When Bible says you are new creation in Christ, means you are baby, child. You are born baby, small बच्चा। तो आप जो बच्चा नहीं भरेंगे तो बच्चा ही रहेगा। इसलिए आत्मा में भी रिन्यूड होना है, रिन्यूड डे बाय डे, एवरी डे वी नीड टू रिन्यूड। रिन्यूड मींस ग्रो, you have to grow. How many of you here in this place you are paralyzed in the spirit? Would you like to become paralyzed person? आप चाहते हैं आप paralyzed जीवन जिए, उठ नहीं पाते, पूरा एकदम बेड में लेट जाए, आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? क्योंकि हम आत्मा में पैरालाइज है already. You cannot raise up. You have to think about it. You are not the physical man. You are not the body, physical being, but you are the spirit being. And you yourself is paralyzed. Then how? कितना दुख की बात, right? जब बच्चा हो गया, मामी उसको दूध पिला रहे, खाना खिला रहे, बढ़ता नहीं, तो मामी का कितना दुख होगा। आपको पहले तो सोचेगा बच्चा बढ़ता नहीं, मार दो उसको, राइट? लेकिन जब माँ जन्म देंगे, जब बच्चे बढ़ते जाएंगे, चलने लगेगा, फिरने लगेगा, स्कूल जाने लगेगा, कॉलेज जाने लगेगा, तभी तो माँ बोलेगा ओ मैंने जन्म दिया इसको। Then just you think, being a new creation in Christ, if you never grow, if you never change, you like a paralyzed person, or you like a kind of handicap, a kind of child. I don't know what called in the scientific, I don't know. In the top like medical term, I don't know what called. लेकिन जो बच्चा बढ़ता नहीं है, ऐसे रहता है। अगर ऐसे होगा तो एक माँ को अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं। तो जो पिता जो आपको जन्म दिया है, जो पिता आपके लिए जो मारा गया है, क्या वो आपसे खुश है आज? Jesus Christ, the God, really is happy with you? The way you grow in the spirit? We need to check. No, I'm so happy, I'm so much proud that I am born in the Christian family. मैं एक मसीही जीवन फैमिली में, परिवार में जन्म हुआ। कब मैं ऐसा खुश हुआ, कब मैं खमन हुआ मेरा जीवन में, जब मैं पता चला कि ओ यीशु मसीह सच्चाई परमेश्वर है। जब मैं पता चला, क्योंकि मेरा एक समय में ऐसा हो गया, that there was a time that when I happened to not believe God, मेरा ऐसे समय आया था, मेरा विश्वास में टूट गया था। मैं सोचा कि दुनिया में परमेश्वर ही नहीं, everything is just a myth, just a story। हम सोचा ये नहीं हो सकता। But inside me, the inner being, the inner man, मेरा जो आत्मा है वो मानता नहीं। मेरा शरीर मेरा ज्ञान के अनुसार, बिकॉज आदमी के अंदर में ज्ञान हमें अलग तरफ ले जाता है, आत्मा हमें अलग तरफ ले जाता है। There is always fight between inside you, like your flesh and your spirit. तो मेरा आत्मा नहीं मानता कि रिसर्च करो। Then I did the research. I start researching because my spirit knows that
I was a sinner. My spirit knows that I will die one day. मैं एक दिन मरूंगा। तो ये मृत्यु से मुझे कौन बचाएगा? जो मैंने पाप किया है वो पाप कौन धोएंगे मेरा? और मेरा ये विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह सच में दुनिया में जन्म हुआ है, दुनिया में सच में जन्म होकर मरा, मेरा विश्वास नहीं था। Though I have read the Bible, though I saw the Bible, मैंने बाइबल को देखा, मैंने वचन को देखा, लेकिन मैंने वचन को जाना नहीं। लेकिन जब जिस दिन मैंने बाइबल पढ़ा, पवित्र आत्मा मुझे रिवलेशन देने लगा, तब पता चला यहाँ पर ही सत्य है। We can find the truth here. Because I could not find anywhere my salvation, my savior. If you are not able to be free from the death, अगर आप मृत्यु से आजाद नहीं हो पा रहे, अगर आपका पाप का क्षमा नहीं मिल पा रहे हैं, तो धर्म पालन करके क्या फायदा? What is the use that you are observe or you are obeying or you are believing to the religion? No use. लेकिन मैंने जब इस बाइबल को देखा, सत्य को जाना, तभी मैंने पता चला कि यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर। Why? क्योंकि ये बाइबल जो लिखा है यीशु मसीह ने नहीं लिखा। जिसने यीशु को देखा उसने लिखा, और जो लिखने वाला है ना, सब इसका वजह से मारा गया। मालूम, अगर उन लोग ने यीशु मसीह को मरते हुए नहीं देखता, यीशु मसीह जी उठते हुए नहीं देखता, यीशु मसीह दुनिया में आगे उनके साथ बैठते हुए नहीं देखा, चमकाई करते हुए, चमत्कार करते हुए नहीं देखा, क्यों लिखेगा? यीशु मसीह का जितना बड़ा चेला और यीशु मसीह ने मरने पर जिसको बुलाया वो सब लोग सुसमाचार में मारा, एक्सेप्ट जॉन डिसाइपल, जो उसका जो चेला जॉन है, जॉन को भी एक कढ़ाई में पूरा एकदम ऑयल पूरा गर्म होकर उसने फेंका गया था, लेकिन मरा नहीं, तो उसका वजह से वो नेचर डेड हुआ। पर द रेस्ट डिसाइपल्स वर मार्टियर्ड। ऐसा कोई है? अगर यीशु मसीह जन्म सच नहीं होता, उसका मृत्यु सच नहीं होता, क्या जो सच नहीं उसकी जीवन देगा क्या? पॉसिबल नहीं। थॉमस जब भारत में आया, इतना दूर से भारत में आया, किसके लिए आया? सुसमाचार सुनाने आया। अगर थॉमस ने नहीं देखता, कभी भी भारत में नहीं आता। वचन में लिखा है कि थॉमस तुमने तो देखा। थॉमस बोला थॉमस ने बोला जब तक मैं यीशु का खावन नहीं छूऊंगा, विश्वास ही नहीं करेगा। क्योंकि थॉमस का आशा टूट गया कि थॉमस जी उठेगा कि यीशु मसीह जी उठेगा कि नहीं उठेगा, वो उसका विश्वास ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह को इतना बुरी तरह से मारा गया, खीर होगा, ऐसा उसका शरीर में खा हुआ, ऐसा लहू बहाया, हालत खराब है। हिस्ट्री बोलता है कि उसका चेहरा एकदम पहचान नहीं सक रहा है, उसको इसे मारा पीटा गया। तो उस हालत में जी उठना असंभव, मालूम, जी उठना असंभव। तो थॉमस ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जब थॉमस ने देखा, अरे ये तो प्रभु है, जी उठ गया है, तो जब सच्चाई को देखा, थॉमस इस भारत में आए। आज हम भारत वाले खमन होना चाहिए कि यीशु मसीह का चेला यहां पर आया, जो जीवित परमेश्वर है, जो हम मनुष्यों का पाप के लिए मारा गया है, वो इस भारत में आए और इस भारत में सत्य को बोलने आया और सत्य के लिए वो मारा गया। उसको पीछे से बाला से मारा, राइट? तो आप सोच के देखिए, अगर जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेगा, पकड़ लो अभी आप एथीस्ट हो, यू आर लाइक ए एथीस्ट। एंड इफ आई टेल यू गो टू पाकिस्तान एंड शेयर द गोस्पेल, आप जाके पाकिस्तान में सुसमाचार सुनाओ, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने तो सच्चाई को देखा ही नहीं। तो थॉमस इस भारत में कभी भी नहीं आता जब तक वो सच्चाई को नहीं देखता। That is why I came to believe that Jesus Christ is the Savior. I came to believe that Jesus Christ is the Lord. मैं बहुत दिनों से ऐसा था कि मेरा दिमाग से चल रहा,
I need the proof. Then God show me the proof. You know. तो आज हम लोग को ये सीरियस लेना है. You should be proud that you are born in the Christian family. You should be proud that you know Christ today, the true God. यीशु मसीह कहता है कि मैं मरूंगा, मरता है. वो कहता है जी उठेगा, जी उठा है. वो कहता है वापस आएगा, वो आएगा. And if Jesus Christ happen to come today, अगर आज वो आता है, will you be raptured today? क्या आपका फ्लाइट आज जाएगा? You have to ready with your flight. You should be there when Jesus Christ comes back. It's not just story, okay? Be serious. Jesus Christ said to his disciples many times that I will die. I will die for sinners. मैं मनुष्यों के लिए मरूंगा. बार बार कहा, मर के दिखाया. उसने कहा मैं जी उठूंगा, उठ के भी दिखाया. यीशु मसीह ने कहा मैं सब कुछ आया हूँ, सब जाके भी दिखाया. And he said I will come back. एक दिन आएगा. And if he comes today, अगर आज आता है, will you be the person that who goes with Jesus Christ? You need to make sure of your salvation today. And the sign of your salvation is when you start bearing the fruits. परमेश्वर ने उद्धार किया है, लेकिन आप उद्धार पाने के बाद भी आकर आपका अंदर में बदलाव नहीं, आप उद्धार का योगी नहीं. You're not worthy of that. Because Jesus says, यीशु मसीह ने ये कहा है, पता नहीं किसको बोल रहे आज ये वचन, मेरा वचन से बाहर आ रहा है. यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर कुछ लोग थे जो यीशु मसीह के पास आए कि मैं तुम्हारा पीछे होऊंगा. यीशु मसीह ने कहा come and follow me, I will follow you, but let me go and bury my father. Jesus said, let the dead bury by itself, come, but he cannot go with Jesus Christ. Sometimes because of the family, sometimes because of so and so, we cannot follow Christ. We think that let my father die, then I will come. Let the mother die, then I will come. Jesus says, you are not worthy of the kingdom of God. Another said, I will come and follow you, but let me go back and say to my family, say farewell. Jesus said, such kind of person is not worthy in the kingdom of God. Sometimes when we do sin, जब हम लोग पाप करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? आज ही लास्ट. We try to do farewell. आज ही लास्ट. मैं दोबारा नहीं करूँगा. Remember, you are not worthy in the kingdom of God. Because if you want to enter the kingdom of God, you must say no means no. No farewell. हम लोग जब स्कूल होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो farewell पार्टी करते हैं, हम लोग अलग करते हैं. आप पाप के साथ आप farewell करने का जरूरत नहीं. The last never comes. The word says not in my language, last. Never end. In my language there is one song. So last never come. If you say last, tomorrow again last will come. Then day after tomorrow again last, then following day again last. Last never end. That is why Jesus said you are not worthy in the kingdom of God. So if you want to become worthy, you take decisions. No means no. आज आपको ये सीखना है कि मैं कैसा नया सृष्टि में रहूं. How can I dwell in the new creations? आपको सीखना है. See, to dwell in the new creations, think on these things. You can mark this one. Think on these things. Okay? सोचो ये सब चीजें में, सब चीजें पर सोचो. ये सब चीजें पर सोचो. What is that? Whatever is true, whatever is honest, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is good report, whatever is virtue, and whatever is praiseworthy, think all those things. Think. What does it mean by think? सोचो. मालूम है? I will just give you formula, very easy formula. जो अपना पाप से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, very easy formula I'm giving you. Okay? सोचना सीखो. Learn to think. What? What is the good? What is praiseworthy? What is best? Learn to think. सोचना सीखो. Why? Because जब terrorists
किसी जगह किसी जगह पे आप हमला करते हैं, ऐसी जगह हमला करता है क्या? पहले सोच आता है इस बार ओके, मुंबई का जो दत्ता होटल है, रतन दत्ता होटल में हम लोग हमला करेंगे। कैसे जाएंगे? वहां पे सी का सामने में हम लोग चार से पहुंच जाएंगे, चार से उतर के ही डायरेक्ट शूट करके घुसेंगे। ऐसे तो क्या, राइट? चार से आया सीधा, चार से निकल के आया, फायरिंग करके घुसा है डायरेक्ट सीधा। समझ पा रहे हैं? एक चोर, the thief doesn't simply enter and steal the things. No, before he enters some house or some bank, he has a plan. He just think about it not only one day, several times. बार सोचने के बाद किया। तारूरी कभी भी वो सोचने के बाद बाद में नहीं पहुंचता, पहले सोचता है। सोचने के बाद वो होश में नहीं रहता, वही शैतान उसको देगा के तारूर लेके आना, है कि नहीं? सोच को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट। चेंज योर माइंड, राइट? चेंज योर माइंड, चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग। आपका सोच को बदलना पड़ेगा, तभी आप नया जीवन जी सकोगे। If you never change your thinking, you will always remain in your past. You cannot come out of your past. आपका जो पुराना जीवन है उससे बाहर निकल के नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब आपका सोच बदलेगा तभी आप नया जो परमिशन ने किया उस पर आप खड़े हो सकेंगे। You can start living a new life. आमेन। आप लोग रेडी हो सही सोचने के लिए? जैसे कि अभी जो एडिक्शन से बाहर हुआ है उनको पूछ के देखना, उनको सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। I can experience that. They don't want to think about it that they were doing those things. हम छुटकारा हो, It's like माथा हिलाने तो सोचने लगे, उनको सोचने का दिल ही नहीं उसका। They don't want to think again that they used to go to bar, they used to go to that wine shop and purchase the thing. They don't want to think it. ऐसा होता है। आप पूछ के देखिए किसी को, आप बोलेगा वो। They deny to think even. उनको सोचने के लिए बंद कर देता है। हम लोग को ऐसा होना चाहिए। अगर सच में आप बदलना चाहते हो, जब सोच आते हैं उसको रुका लेना, सोचना ही नहीं, आपको सोचना ही नहीं है। Forget it. Stop thinking, but start learning to think about goodness of God. Start learning to meditate the God's word. हम लोग परमेश्वर का वचन तो मेडिटेट नहीं करते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वो सारे जो पुराना चीजें सोचते रहता। हम चाहते हैं जब आप रूम में जाएंगे ना, नया साल है, हो सके तो इट इज अ सिंपल थिंग, बट इफ पॉसिबल ट्राई टू इवन चेंज योर बेड। आपका बेड जो कहाँ पे हो थोड़ा सा मूव कर, जस्ट मेक योर माइंड न्यू। आपका सोच थोड़ा अलग होने के लिए कभी ऐसा चीज भी करना चाहिए, यू नो। It may be like a foolish thing, but if you do that, you will feel something new. आपको लगेगा हाँ कुछ तो है, नया साल है, तो आप ऐसे कर लो कि मैं इस नया साल में वो करूंगा, कुछ लिख के चिपका दो। वही थोड़ा सा काम आपको लगेगा कि कुछ तो नया होने वाला है। हाँ, आप रूटीन लिख दीजिए कि मैं सुबह उठ के वो करूंगा, ये करूंगा, लिखे रखो and start doing that. When you write it down and when you see that one, जब आप लिख के रखेगा और जब उसको देखने लगेगा, आप सोचने लगेगा। तो आपके पास कुछ तो प्लान ही नहीं है। You don't have any plan, just comfort zone, aimless। आपका जीवन में कुछ aim, just comfort zone। सोएगा उठेगा। You will live the same way even in this 2026। 2026 आप वही जीवन जिएंगे जब तक आप नया सोच, नया प्लान नहीं बनाएंगे। Right? नया प्लान बनाना बहुत जरूरी है। If you want to live a new life, God has done the new things in your life. Now let us live a new life. आप लोग सब रेडी है नया जीवन जीने के लिए, तो हम लोग को नया डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, unless you don't try to think new, you cannot become new. Let's say unless I don't think new, I cannot become new. So what do you think new now? If you, अगर आप
आधा घंटा रोज प्रार्थना करते हो, 1 घंटा रोज प्रार्थना करते हो, तो आपको सोचना है कि मैं आज से 1.5 घंटा प्रार्थना करूं, समथिंग न्यू, राइट? अगर आप एक दिन में 1 बार पायो पढ़ते हैं तो आप सोचना कि आज से मैं एक दिन में 2 बार पायो पढ़ूंगा, सुबह शाम, समथिंग न्यू, राइट? है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? अगर आप घर में काम करता ही नहीं है तो आज सोचना कि मैं आज से मेरा मम्मी को हेल्प करूंगा, We have to do something new, right? और जो नशे करते हैं आप सोचना कि आज से मैं दारू नहीं पिएंगे, मैं उसके बारे में सोचूंगा। When you stop thinking, you cannot do that, because what you think, what you become. आप क्या सोचते हो वो आप बनता है। तो आप लोग तैयार है ये सब चीजें सोचने के लिए, जो क्या सच है, क्या ऑनेस्टी है, क्या सही है, जस्टिस, जो प्रेम है, राइट, जो अच्छा रिपोर्ट है, जो ईमानदारी है, जो शुद्ध है, वो सब चीजें सोचना है। इफ यू थिंक अबाउट अनक्लीन थिंग्स, रॉन्ग थिंग्स, देन यू डू रॉन्ग। If anyone is here who is a thief, example, if you start thinking only stealing, you will steal. जो हमारा बीच में जो पीता है, आप सोचेगा पीने के बारे में, आप पिएगा ही, because you are thinking, you are not changing your brain, and you are saying, I want to change. How you will change unless you change your thinking? आपका सोच को जब तुम नहीं बदलोगे, तुम बदल नहीं सकता, राइट? और सोच को बदलने के लिए आपको एक्टिविटीज, आपको निर्णय लेना है कि मैं अभी पीना रुकूंगा, मैं बाइबल पे ध्यान दूंगा, I will meditate on the word of God. And when you start meditating the word, when you start thinking about the goodness of God, that is what you will start changing. Amen. आप बदलने लगोगे, ठीक है? सो आज जो क्रिसमस है, इसमें मैं चाहता हूं कि हम सब लोग बदलें। God doesn't say to recall your past life, but God says to renew your mind. How? If you see here, Ephesians chapter 4 verse 22 to 24 says that you put off concerning your former conduct, your former behavior, right? आपका जो पुराना स्वभाव है, पुराना स्वभाव किसको कहते हैं? खराब स्वभाव, bad behaviors, घर में अशांति करना, राइट, उल्टा पुल्टा करना, कुछ अननेसेसरी खर्चा करना, ये सब अच्छा है? नहीं। So we need to change your former conduct, former behaviors, and you need to change your own man, which is gross corrupt according to the deceitful lust. जो आपका शरीर है, ये क्या है? कीड़ा हुआ शरीर है, old man, right? Old man. तो ये हमेशा क्या है? करप्शन में बढ़ता है। हमेशा ये क्या करता है? लालच में क्या? लालच का क्या? धोखा, डिसीटफुल लस्ट, राइट? तो आज हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को रिन्यू करना, बी रिन्यू इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड, बी रिन्यू इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द माइंड? व्हाट इज स्पिरिट ऑफ द माइंड? दिमाग का आत्मा क्या है? दिमाग का आत्मा एटीट्यूड। Everybody has the attitude, right? There are so many different kind of attitude that people have. The attitude of pride, right? The attitude of anger. है कि नहीं? बहुत सारा attitude है। Attitude is a spirit that operates every anger, pride, wrong behaviors, rude behaviors, hatred, unforgiveness, everything that operate by your attitude. Attitude is the spirit of mind. So when you change your attitude, automatically you change your mind. अब नम्र करने लगेगा when you remove your attitude and become humble, then you start changing. Renew your mind, renew your attitude. Change your attitude, put the humble attitude, understanding attitude, adjustable attitude, loving attitude, right? We need to change our attitude.
आज दुनिया में एटीट्यूड से भरा हुआ है. Change into the attitude of Christ, full of humble, full of love, full of kindness, full of care. है कि नहीं? हम लोग को बदलना बहुत जरूरी है. Change, renew your attitude of your mind and put on the new man. Who is the new man? The new creations, the born again spirit. उद्धार जो हुआ है वो उद्धार हुआ आत्मा, नया सृष्टि आपका सोच में लगाना है. Amen. That means you need to live by the spirit, the new spirit, the new creation. समझ पा रहे हैं? अब लोग समझ पा रहे हैं? Can you understand that one? तो आज हम लोग जब नया सृष्टि हुए हैं तो नया जीवन जीना सीखो. When you are born of the Spirit, then you start living accordingly, not with your fleshly nature. आपका शरीर का जो नेचर है, शरीर का जो खराब चीजें हैं, उससे जीना नहीं. क्योंकि शरीर हमेशा खराब करने के लिए मांगता है. शरीर हमेशा किसी का नफरत, किसी का चल्लास, किसी को देखता है, वो सब शरीर मांगते हैं. कितने लोग शरीर के द्वारा जीते हैं, राइट? हम लोग जब तक शरीर में जिएगा आप विश्वास में नहीं बढ़ सकता. जब तक हम लोग शरीर में जिएगा आप आत्मा का फल नहीं ला सकता. शरीर का सहारा नहीं, आत्मा का सहारा लेना. यू नीड टू पुट द न्यू मैन इनसाइड योर ब्रेन, द न्यू क्रिएशंस. आपको हमें अभी से सोचना. लास्ट संडे में उन्होंने क्या सीखा था? हम लोग नया सृष्टि है, हम लोग पवित्र है, हम लोग धार्मिक है. तो वो चीज, वो नेचर आपका अंदर से आना चाहिए. बिकॉज यू आर होली, you are righteous, so the righteousness fruit shall come out of you, the holiness shall come out of you. What is the meaning of righteous and holiness? Righteous means you are being forgiven. Holiness means you become a child of God. Amen. आप परमेश्वर का संतान है कि नहीं? You are the child of God. That means you are holy. God is holy. God says I am holy. You are the child of God. Righteous means God has forgiven all your sin. Amen. तो आज हम लोग नया जीवन जीने के लिए तैयार हैं. हम लोग लास्ट वीडियो इसको देखेंगे, फिर मैं खत्म करूंगा. ठीक है? Do not conform to the patterns of the world. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. How many of you want to renew your mind? आप लोग कितने लोग हैं जो आपका सोच को नया करना चाहते हैं? सब लोग, राइट? हम लोग का सोच को नया करना बहुत जरूरी है. क्योंकि देखिए, when you live with your old thinking patterns, आपका पुराना सोच से जब तक आप जिएंगे, मैं ये 100% मैं कह सकता हूं कि जो पुराना सोच से जी रहे हैं, you are going through with depressions, you are going through with anxiety, you're going through with different stress. Why? Because your own thinking patterns that make you. And if you want to overcome from those depressions, anxiety, stress that you are going through, then you must renew or transform by the renewing of your mind. If you renew your mind, you will be free from your anxiety, depressions, hopeless, stress, discouragement, and you'll get new hope. You'll get new faith, new understanding. You'll start seeing the new things that are happening. आपका जीवन में कुछ नया चीजें होने लग रहा है. आप खुद ब खुद देखने लगेगा कि परमेश्वर काम करने लग रहा है. Until unless you don't connect with God, you cannot see the miracles in your life. देखिए, जब तक तुम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड ही नहीं है और बोलेगा परमेश्वर का काम कहां पे देख नहीं रहा है. How can you see the work of God unless you are not opening the heart for Him? Can you see the work of God? God can only work when you are connecting the antenna. You know antenna? आपको जानते हैं एंटीना? पहले जमाने में टीवी देखते थे, TT1, TT2 करके कुछ आता था, उसमें एंटीना लगता था, राइट? तो एंटीना जब तक बराबर नहीं लगेगा टीवी क्लियर नहीं है.
The same way, you need to turn your antenna towards God. तभी परमेश्वर का काम को तुम देखोगे. कभी भी परमेश्वर कोई लोग बोलता है, I want to so and so church, I want to such church, the anointed church, but nothing like that. I don't feel anything. How you will feel anything because you are not with God? और कैसे महसूस होगा जब तक तुम परमेश्वर के साथ ही नहीं है? आदमी बोलता है वहां पे किया, मैं बेनिहिल का चर्च में क्या, उसमें क्या, आदमी लोग गिरता है, वो झूठ है, हम तो गिरा ही नहीं है. How can you fall when you are not with God? जब परमेश्वर के साथ रहते हैं तब पता चलेगा, जिस चर्च में जाएंगे जो पवित्र आत्मा जिसमें परिस्थिति जब शामिल है वहां पर खुद ब खुद महसूस करने लगा कि पवित्र आत्मा यहाँ पे. Whenever I go some churches, I can strongly feel that there is a presence of the Holy Spirit. When I go some churches, I feel that nothing is there. The church is dead, and I can see the member are dead. So, जो feelings, attachment, it's all about how you connect with the Lord. परमेश्वर के साथ कैसे आप संबंध रखते हैं, परमेश्वर के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं, तभी तो आपको फील होगा. और जब आप फील होंगे तो परमेश्वर का काम आप देखोगे. You can see the work of God. So in this new year, this is my question: that do you want to see the work of God? आप क्या देखना चाहते हैं परमेश्वर का काम? अगर आप परमेश्वर का काम देखना चाहते हैं तो आपका सोच को बदलना है. जैसे परमेश्वर सोचते हैं ऐसे सोचे. Think the way God thinks. जब आप वचन पढ़ के वचन पे विश्वास करना सीखना शुरू हो जाएगा, वचन पढ़ के वचन करना सोचने लग जाएंगे, that means you are trying to think the way God thinks. And if you learn to think the way God thinks, then you will be able to see the way God performs the miracles. Amen. तो ये नया साल आप लोग नया चीजें को देखना है, चमत्कार को देखना है. You know, when I was praying, God revealed me and talked to me that this year is going to be a year of flourishing. So many people might be thinking that how that will be in this year, but God is continuing to speak to my heart that this year is going to be a year of flourishing, sufficiency, the year of prosperity. But only those people will have this blessing who connect with the Lord. ये आशीष उन लोगों के लिए होगा जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहता है. लेकिन जो परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं होगा उन गजन में ये आशीष नहीं आएगा. Amen. This is a prophecy for the year of 2026. It is going to be a flourishing year. And even we are going to see in our church the sufficient pouring the blessings of God. We are going to see so many miracles that happening in this church. Amen. तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. Since we all have come to pray, let us, like by sitting, we'll pray first. Then when we do the meditation, we will stand up. Okay? For now, we will pray. हम लोग प्रार्थना करेंगे. जो नया साल है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे. We will give thanks God. हम लोग परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देंगे कि हमें जो नया साल दिया है, ये नया साल हमारे लिए परमेश्वर ने एक वरदान का रूप में लाया है. हम लोग धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करेंगे जो नया साल मिला है उसका हर मकसद पूरा होने के लिए प्रार्थना करेंगे. और जैसे हम लोगों ने आज वचन देखा, विशेष रीति से हम लोग हमारा सोच बदलेंगे. हम लोग सोच बदलेंगे. हम लोग जो कुछ भी गलत काम करते थे, जो कुछ भी परमेश्वर का विरोध में हम लोग खड़े होते थे, इसलिए खड़े होते थे कि हम लोग सोच गलत था. आज हम लोग सोच बदलेंगे. आप परमेश्वर को जरूर, you fear the Lord, try to think right, don't walk against God. When you start thinking right, you will do the right things, and your one thinking will change your life. आपका एक सोच आपका डेस्टिनी बदल जाएगा. When you think wrong, your destiny will be wrong. The failure, the anxiety, depressions, everything will come upon you. But when you think right, God will energize you, strengthen you, and God will lift you up. Because the Bible says, God will lift up the humble.
Yes. When you are pride, you cannot grow up. You cannot be promoted. Because God hates the pride. God cannot do miracles when you are pride. God cannot bless when you are pride. But when you are humble, the word says that you will inherit the earth. When you are humble, you will conquer the earth. Yes, friends, the church, do you want to conquer the earth? Do you want to inherit the earth? Wherever you go, you want to get promotion, you want to get favor. Wherever you work, you want the people to be favoring over you. If so, then you must learn to be humble. If you are become humble, everybody will live with you in peace. If you become humble, wherever you're working, you will start seeing the promotions.